A very good morning, all my dear students. I am Pallavi Dhole, welcomes you all in this today's lecture of programming with Python. We already started with our unit number 5 and already covered in the previous lecture, that is the concept of class inheritance. Okay, so in this today's lecture we are going to deal with the overloading concept, that is the method overloading, method overriding. That concept you have to cover in this topic. Okay, so in the previous lecture we discussed the class inheritance, so let us overlook on that. Here the class inheritance, just like overriding, means creating a new class from the existing one. So derived class basically access or inherits the features of the existing or the parent class. So this is the basic syntax which is already given in this. So class, subclass name, and in the parenthesis you have to give the parent class name. So you can give the multiple parents name with the which is separated by a comma. Then this is the example, we already discussed this. Then this is the similar way you can derive a class from the multiple parents. So multiple parents भी आपके Python के अंदर possible है. That means multiple inheritance is possible in case of the Python programming language. Then we will already discuss the two important methods, that is the is subclass or is instance function, to check a relationship of two classes and the instances. The is subclass Boolean function returns true if the given subclass sub is indeed a subclass of the superclass soup. And the second one, the is instance object class Boolean function returns true if object is an instance of the class or is an instance of subclass of the class. Okay, then now in this today's lecture we will study the concept about the overriding the methods. Okay, so you I know that कि आपने जब object oriented programming पढ़ा है, whether it is in CPP or whether it is in Java, so you are already familiar with this topic. Okay, so basically दो fundamentals होते हैं आपके programming के अंदर. Very first is called as the method overloading. Okay, this is the first concept. तो यहाँ पे अगर आपने सपोज एरिया नाम का फंक्शन अगर दिया है तो यू कैन राइट मल्टीपल एरिया फंक्शन, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स आप लिस्ट देते हो दैट मस्ट बी डिफरेंट इन दिस केस. ओके, सो देन एंड देन दिस इज कॉल्ड एज द मेथड overloading. मतलब same, the function having the same name but the number of parameters different और type of parameters different अगर हो तो आपका concept होता है method overloading. and जो अभी आप पढ़ने वाले हैं that is the overriding. so overriding का concept होता है आपका means same name having same number of parameters or same type of parameters in an argument list. Such a method process is called as the overriding method. So you can always override your parent class methods. One reason for overriding parents method is because you may want a special or a different functionality in your subclass. So तो हम किस लिए करने वाले हैं कि सेम नेम है बट उसका जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द डिराइव क्लास और अकॉर्डिंग टू द पेरेंट क्लास, तो हर क्लास में उसका जो बिहेवियर है दैट मे बी डिफरेंट. ओके, सो हैविंग सेम नेम, हैविंग सेम बॉडी स्ट्रक्चर, हैविंग सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, बट द फंक्शनैलिटी ऑफ द method must be different or may be different. So for that purpose we are using the concept of overriding method. See, this is the example of method overriding. So here user bin Python, then class parent. So this is your parent class, def my method self. Okay, तो यहाँ पर हमने एक def method नाम की जो है वो मेथड हमने डिफाइन की है. देन फिर कॉलिंग पेरेंट मेथड. सेकेंड वन लिया है मैंने क्लास चाइल्ड पेरेंट. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको इनहेरिट किया है, मीन्स इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमने दिया है. सो क्लास चाइल्ड इज़ योर नेम ऑफ योर सब क्लास एंड पेरेंट इज़ अ नेम ऑफ योर पेरेंट क्लास.
ओके, जो आपका एग्जिस्टिंग क्लास है उसको मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया है. सो दिस इज़ योर चाइल्ड क्लास डेफिनेशन एंड दिस इज़ योर पेरेंट क्लास डेफिनेशन. सो चाइल्ड क्लास के अंदर भी डेफ माई मेथड सेल्फ सेम देखिए, यहाँ पर हमने डेफ माई मेथड ली है और यहाँ पर भी डेफ माई मेथड सेल्फ ही ली है. सो दोनों भी सेम ही है एंड इट विल प्रिंट द मैसेज कॉलिंग चाइल्ड मेथड. तो फर्स्ट इसमें सिर्फ बिहेवियर उसका अलग है, कॉलिंग पेरेंट मेथड यहाँ पे है, और सेकेंड इसमें है आपका कॉलिंग चाइल्ड मेथड. when the object of the child class is created here, c equal to child. Okay, so by default its constructor will be called and c dot my method have to call. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा when the above code is executed it produces the following result. तो हमने चाइल्ड क्लास का क्रिएट किया है तो उसने मैसेज दिया आपको कॉलिंग चाइल्ड मेथड. सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम. तो हम सेम नेम सेम पैरामीटर लिस्ट यूज़ करके आपकी पेरेंट क्लास की जो भी डेफिनेशन है मेथड है वो आप आपके डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो. सो आई अगेन रिपीट दैट कि पेरेंट एंड द चाइल्ड क्लास कंसिस्ट method with a same name and same number of parameter list. Such a type of method concept is called as overriding method. Okay, so in this way your output will be generated in this program. So see here the base overloading method. Following table list some generic functionality that you can override in your own classes. Okay, so आप आपके जो क्लासेस है उसमें आप ओवरराइड कर सकते हो आपके खुद के क्लास के अंदर. सो वेरी फर्स्ट इज़ दी अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इन ब्रैकेट सेल्फ देन आर्ग्यूमेंट. जो भी आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट है सेल्फ देने के बाद आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप दे सकते हो. सो इट इज़ नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर. इट इज़ अ नेसेसरी टू इंक्लूड इन ईच एंड एवरी क्लास अगर आपके आर्ग्यूमेंट है तो. Okay, so with any optional arguments, so sample call object equal to class name in bracket argument. तो जो भी आपके argument हो यहाँ पर आप पास करोगे that will be initialized with this one and that will indirectly initialize the class members or class variables of the class. Okay, so this is nothing but the constructor. So init method is basically used to initialize the data members or the member functions. Then underscore del underscore self. So it is a destructor. So it deletes an object. So del object. So del keyword is basically used for that. तो अगर उसका कंस्ट्रक्टर अगर आपको क्रिएट करना है, डिस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करना है, सो अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर सेल्फ आपको ये मेथड इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है आपके क्लास डेफिनेशन के अंदर. सो वेरी फर्स्ट इनिट मीन्स इनिशियलाइजर एंड डिलीट मीन डिस्ट्रक्टर. सो इसको इनिट को आप कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो और डेल को आप डिस्ट्रक्टर बोल सकते हो. नेक्स्ट इज़ दी REPR. ओके, सो इट इज़ जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन. सो अंडरस्कोर रिप्रेजेंटेशन अंडरस्कोर सेल्फ. तो रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिया है REPR. सो वैल्यू इवैल्यूएबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन. सो सैम्पल कॉल REPR इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट. तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेगा, इवेल्युएट करेगा आपके ऑब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन. देन नेक्स्ट इज द str self अंडरस्कोर str अंडरस्कोर सेल्फ. सो प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन. सो यहाँ पर सिर्फ इवेल्युएबल है और यहाँ पे प्रिंटेबल है. तो सी एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ऐसे MCQs पूछे जा सकते हैं कि ये मेथड का पर्पस क्या है, ये मेथड का पर्पस क्या है, ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है. सो यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्रिंटेबल स्ट्रिंग representation. So again str in bracket object you can definitely call like this. And the last one is the underscore cmp underscore self comma x. So object comparison. तो यहाँ पर जो भी आपका पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है
ओके, सपोज़ अगर मेरा सपोज़ P1 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे P2 ऑब्जेक्ट है, तो सेल्फ तो कंपेयर यहाँ से जो आपका सेकेंड पैरामीटर है, सपोज़ ये मैंने P1 दिया, तो P1 आपका ऑलरेडी है और ये जो आपका X है जो दैट इज़ P2, सो P2 इज़ इक्वल टू P2। तो ये कंपैरिजन होगा कि वेदर दे आर बिलोंग टू द सेम क्लास डेफिनेशन और नॉट। ओके, तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन होगा ऑब्जेक्ट्स का, वेदर दे आर बिलोंग टू द सेम क्लास डेफिनेशन और नॉट। अगर वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं देन दिस मेथड विल रिटर्न द वैल्यू 0, सो इट विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर वैल्यू। ओके, so these are the basic base overloading methods basically used for the generic functionality that we can override in your own classes. Very first, init, that is the constructor, del for destructor, representation, that is evaluable string representation, then str, that is the printable string representation, and the compare. सो यहाँ पे आपको हर जगह पे अंडरस्कोर स्टार्टिंग में मीन्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स लगाना ही है। सो कंपैरिजन इज़ फॉर दी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बेस ओवरलोडिंग मेथड्स। नेक्स्ट इज़ दी ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। सो जैसे हम मेथड्स को ओवरलोड करते हैं वैसे ही आप आपके ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सीपीपी में ये पॉसिबल था बट जावा में ये पॉसिबल नहीं था। ऑपरेटर्स आप ओवरलोड वो इनबिल्ट था, जैसे कि प्लस इज़ फॉर कॉन्कैटिनेशन। ओके, प्लस एक्चुअली इज़ फॉर एडिशन, बट प्लस हमने आपको पता है कि system.out.println जब हमने स्टेटमेंट लिखा था तो प्लस ऑपरेटर इज़ बेसिकली यूज टू कॉन्कैटिनेट, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हमने वो यूज़ किया था। So suppose you have created a vector class to represent two-dimensional vectors. What happens when you use the plus operator to add them? So most likely Python will yell at you. So you could, however, define the _add_ method in your class to perform the vector addition, and then the plus operator would behave as per the expectation. Okay, so add method is basically used in this concept for the overloading operators. So let us see the examples belong to the operators overloading. So here this is the example which is based on the concept of operator overloading. Okay, so here I'll create a one class, that is class vector here, then def _init_self a, b। सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट लिए और सेल्फ इज़ द कंपल्सरी थिंग। तो वेक्टर नाम का हमने यहाँ पे क्लास लिया, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए एंड सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। तो डायरेक्टली सेल्फ डॉट ए को आप ए से इनिशियलाइज कर सकते हो जब भी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी आप उसका वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड its value will be initialized to a and b, and that will be ultimately to self dot a and self dot b. Okay, so init method is just for the initialization and it is a constructor, acts as a constructor here. Then def _str_self, so return vector %d %self dot a and self dot b. So str means a printable representation. Okay, so you just remember this. सो हमने रिप्रेजेंटेशन वाला जो लिखा था दैट इज़ इवेल्यूएबल, और str जो मेथड थी ओवरराइडिंग मेथड, तो जैसे कि आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो। सो str इज़ जस्ट फॉर द प्रिंटेबल। तो यहाँ पे वेक्टर के जो भी आपके मेंबर्स है दैट इज सेल्फ डॉट ए एंड सेल्फ डॉट बी, दैट विल बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस str. सो %self dot a self dot b here. Next, def _add_self other. Okay, so return vector self dot a plus other dot a self plus b plus other dot b. so हमने क्या किया यहाँ पे self dot a और self dot b के साथ हमने others का जो भी वैल्यू है that will be added. okay, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है आपके वेक्टर की एडिशन. ओके, सो v1 प्लस v2. ओके, सो 2 पैरामीटर्स आर देयर. सो जब भी हमने वेक्टर को कॉल किया, जैसे ही वेक्टर को कॉल किया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इनिशियलाइज हुए, एंड देन ऑटोमेटिकली द डेफ दैट इज _str_self and _add_self
self.other will be called automatically because these are all the overridden method. तो इन किसी को भी आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, v1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब भी क्रिएट हुआ, ओके, v1 ऑब्जेक्ट जब भी यहाँ पर क्रिएट हुआ, v1 इक्वल टू वेक्टर 2,10, तो सबसे पहले 2 and 10 इनिशियलाइज हुआ self.a और self.b को, तो वो हमने प्रिंट भी किए। नेक्स्ट वन v2 वेक्टर 5, -2, सो अगेन कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, सेकेंड ऑपरेटर विल बी, सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, उसको हमको 5 and -2, तो वो भी हमने प्रिंट की। यहाँ पे आपको आउटपुट जो है, सॉरी, सो यहाँ पर जो वेक्टर है 2, 10 and 5 -2, तो ये हमने क्रिएट किए। देन प्रिंट v1 प्लस v2, तो हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ दिस, जैसे ही हमने प्लस v1 प्लस v2 दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे ही ऐड करना चाहा, तो ऐड मेथड इज़ बेसिकली कॉल, एंड जो फर्स्ट 2 पैरामीटर्स है उसकी एडिशन और लास्ट 2 पैरामीटर्स है उसकी एडिशन परफॉर्म हुई, क्योंकि self.a के साथ मैंने क्या किया है, other.a, ओके, तो यहाँ पर वो other.a के अंदर ही वो ऐड होगा। सो v1 प्लस v2 विल प्रोवाइड द आउटपुट वेक्टर 7, 8, okay, so this is just because of the overridden concept method, and with the help of that overriding methods, you can basically overload the operators in your Python programming language. Okay, so this is very important as per the examinations point of view. ऐसे questions आपको examination में MCQs में आ सकते हैं। Next is the data hiding concept. Data hiding concept is very important because it is related to security. Okay, तो हमने जब CPP या फिर जावा का कंसेप्ट पढ़ा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो डेटा मेंबर्स रहते हैं दे आर प्राइवेट। सो प्राइवेट इज़ अ एक्सेस मॉडिफायर, स्पेसिफिक मॉडिफायर उसको बोलते हैं। तो मॉडिफायर हर प्रकार के होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इन केस ऑफ जावा ऑल्सो। सो प्राइवेट मीन्स protected, means other than the program they will not be accessed outside the world. Okay, so that's why the data hiding concept is related to that access modifier. Okay, so जैसे कि CPP में या जावा के अंदर जो हमने कंसेप्ट देखा था, तो for that it will be a private. Okay, so when you are declaring any method or any data member as a private, then this is a very secured concept. You cannot, these members and member functions cannot be accessed through outside the program world. Okay, so data hiding is related to that concept. So in case of Python also data hiding concept is achieved. An object attribute may or may not be visible outside the class definition. Okay, so you need to name attribute with a double underscore prefix, and those attributes then are not be directly visible to outsider. ओके, तो 2 अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स आपको लगाना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे 2 अंडरस्कोर आपको किसी भी डेटा मेंबर के सामने आपको प्रीफिक्स करना है। सो अगर आपने नॉर्मल किया तो दे आर नॉट बी प्राइवेट। ओके, अगर आपको उसको प्राइवेट करना है, डेटा हाइड करना है आपके प्रोग्राम का, if you don't want to access outside the class definition, then you have to prefix this 2 underscore to the data members before the data members name. तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर जो है that is the example. तो यहाँ पर हमने 2 ऐसे अंडरस्कोर है, आपको वो चिपके हुए इसलिए ध्यान में नहीं आ रहा है, and then the secret count equal to 0. So then and then this will become a secured, that means data will be hidden and you cannot visible, the attribute then are not be visible directly to the outsider. So this data hiding concept will be achieved just by using the double underscore which is prefix for the any variable में। तो just उसको prefix करके आप आपके member को हाइड कर सकते हो, डेटा को आप हाइड कर सकते हो, that is also a data abstraction. Okay, so then यहाँ पर क्लास जस्ट काउंटर
अंडरस्कोर सीक्रेट काउंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैंने उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी 0. देन डेफ काउंट इन ब्रैकेट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सीक्रेट काउंट प्लस इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दी काउंट के अंदर. एंड देन प्रिंट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सीक्रेट काउंट. देन काउंटर इक्वल टू जस्ट काउंटर. तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. देन काउंटर डॉट काउंट एंड देन द लास्ट वन काउंटर डॉट सीक्रेट काउंट को मैंने प्रिंट किया. तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये जो है दैट विल बी सी वेरी फर्स्ट काउंट इक्वल टू जस्ट काउंटर. तो यहाँ पर ये कॉल हुआ, सीक्रेट काउंट इक्वल टू 0 इनिशलाइज हुआ. देन काउंटर डॉट काउंट, तो ये यहाँ पे क्लास का ही मेंबर है. सो जो डेफ काउंट है दैट इज़ अ मेंबर ऑफ जस्ट काउंटर क्लास डेफिनेशन. तो यहाँ पर ये जो मेंबर है एज इट इज़ अ डेटा हाइडेड प्राइवेट उसको करके रखा है, तो इट विल बी एक्सेस इन द काउंट. तो क्योंकि सेम डेफिनेशन बट ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखे दे आर मे बी आउटसाइड. ओके, तो यहाँ पर जो प्रिंट सेल्फ जो सीक्रेट काउंट हमने प्रिंट किया है, तो इन दैट फर्स्ट काउंटर डॉट काउंट इट विल प्रिंट द मैसेज दैट इज़ प्रिंट. ये जो आपका स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा. देन काउंटर डॉट काउंट अगेन प्रिंट होगा. लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट आउटसाइड लिखा है दैट इज़ प्रिंट काउंटर डॉट सीक्रेट काउंट, दैट विल नॉट बी एक्सेस आउटसाइड बिकॉज इट इज़ आउटसाइड स्टेटमेंट. सो दैट्स वाई हियर सी दैट व्हेन द अबव कोड इज एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट. तो यहाँ पे 1 और 2 प्रिंट हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर काउंट 2 बार यहाँ पर मैंने कॉल किया है. यहाँ पे जो काउंट है और ये काउंट मैंने 2 बार कॉल किया है. सो इन दैट काउंट मेथड सी काउंट मेथड कंसिस्ट प्रिंट सेल्फ काउंट सीक्रेट काउंट. ओके, तो एज इट इज़ अ प्राइवेट सो काउंट मेथड विल एक्सेस दिस. सो दैट्स वाई हियर द आउटपुट इज़ 1 2. एंड देन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ये लास्ट स्टेटमेंट लिखा प्रिंट काउंटर सीक्रेट काउंट लास्ट स्टेटमेंट, सो इस पे इसने क्या किया, थ्रो बैक आपको एरर जनरेट किया. बिकॉज एरर क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द वर्ल्ड बिकॉज योर डेटा मेंबर इज हियर प्राइवेट विल बी हाइडन विच कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. So Python protect those members by internally changing the name to include the class name. So you can access such attributes as object dot class name attribute. If you would replace your last line as following, then it works. Okay, so print counter dot underscore just counter underscore secret. Okay, तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा. Then and then your प्रोग्राम विल वर्क. तो यहाँ पे लास्ट जो स्टेटमेंट है काउंटर डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट जो काउंट लिखा है उसके साथ आपको बीच में ये जो नाम है आपके क्लास डेफिनेशन का जस्ट काउंटर ये भी जोड़ना है विथ अंडरस्कोर. तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर उसके साथ में एट्रीब्यूट है. तो एट्रीब्यूट क्या है आपका? एट्रीब्यूट क्या है आपका? सीक्रेट काउंट. ओके, सो यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट देखिए, जब भी ये आपका अगर लास्ट स्टेटमेंट आप चेंज करोगे सो देन एंड देन योर आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. सो 1 2 जो लास्ट लाइन पे आपका यहाँ पे एरर दे रहा था बट यहाँ पे उसने लास्ट लाइन को प्रिंट किया था 2 क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो 2 ही आपका आउटपुट आएगा विच इज़ आउटसाइड. अगर आपको आउटसाइड उस डेटा मेंबर्स को यूज़ करना है सो यू हैव टू जस्ट मेक द करेक्शंस इन योर लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट काउंटर डॉट अंडरस्कोर जस्ट काउंटर सीक्रेट काउंट. ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटा हेडिंग. अगर आपको सिक्योरिटी डालनी है आपके डेटा मेंबर्स के लिए एट्रीब्यूट्स के लिए तो आप डेटा हेडिंग का कंसेप्ट यूज़ करके उसको सिक्योर कर सकते हो. सो बिकॉज ऑफ दिस your data members or the attributes will be secured and cannot be accessed by the outside world. So this is very important as per the examinations point of view. Okay, so today's lectures में हमने ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखा, उसके ओवरलोडिंग मेथड्स देखे, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देखा विथ एग्जाम्पल एंड द डेटा हाइडिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वन नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट लिसन केयरफुली कि 14, 15 एंड 16 जून को आपका सेकेंड सेक्शनल एग्ज़ाम है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. सो फर्स्ट यूनिट में हमने फर्स्ट जो
सेशनल था उसमें जो सिलेबस था वो छोड़ के बाकी जितना भी कवर होगा दैट विल बी अ सिलेबस ऑफ योर सेकेंड सेशनल. ओके, so I hope you understand this concept all and after that we will started जो भी छोटा सा concept हमारा बाकी है वो और 6 यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड 22 से आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स भी रन होंगे, तो आपको बिफोर दैट आपके मैनुअल्स भी कंप्लीट करने हैं. ओके, विद द रेफरेंस ऑफ द गिवन नोट्स. So I hope you like it and you understand the concept today's lectures. So till then, thank you so much all of you. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.